Good morning, dear student. How are you? I hope you all are well and taking the good care of your studies. Dear student, we have already learned what is point, what is line, what is plane, what is line segment, what is betweenness. Okay, this much we have already learned in our last video. Let us learn something more about segment. So we are going to learn something more about segment in this video. As you can see first congruence of segment. Here I have written two lines are said to congruent if they are of the same length. मतलब अगर दो सेगमेंट का लेंथ एग्जैक्टली सेम है तो हम कह सकते हैं कि बोथ सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट. दोनों सेगमेंट्स क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है. फॉर एग्जांपल you can see if the length AB is equal to 5 centimeter and the length MN is equal to 5 centimeter. आप देख सकते हो कि दोनों का लेंथ क्या दिया गया है, सेम दिया गया है. तो if length AP is equal to length MN then we write seg AB is congruent to seg MN. तो हम कह सकते हैं कि दोनों सेगमेंट्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. क्यों? क्योंकि दोनों का लेंथ क्या है, एग्जैक्टली इक्वल है. Okay, so let us understand something more about what is the property of congruent segment. अगर दो segment congruent है तो उनकी कुछ properties भी होती है. ठीक है. The first property is reflexivity. Reflexivity का मतलब क्या हुआ? First, a segment is always congruent to itself. कोई भी जो segment होता है पहले तो अपने आप के ही क्या होता है, congruent होता है. जैसे मैंने बोर्ड पे लिख के दिया है, एवरी सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ. हर एक सेगमेंट पहले तो खुद के ही क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है. जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हो, सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो कभी भी सेगमेंट ए बी पहले खुद के भी बराबर होगा. आप चाहे यहां से बी तक मेजर करो या बी से ए तक मेजर करो, दोनों का लेंथ कितना होगा, 5 सेंटीमीटर. So this is all about your first property of congruence of segment. Now second property of segment, congruent segment is symmetry. Symmetry means what? Suppose here two segments are given and if the first segment is congruent to second segment, so it means second segment will also congruent to first segment. अगर पहला सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा सेगमेंट भी पहले सेगमेंट के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा. जो मैंने यहां लिख के दिया है, इफ फर्स्ट सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू द सेकंड देन द सेकंड सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू फर्स्ट. जैसे आप यहां डायग्राम में देख सकते हो, if segment AB is congruent to segment MN then segment MN will also congruent to segment AB. जैसे एग्जांपल में मैंने दिया है लिख करके कि if segment AB is congruent to segment MN then seg MN will congruent to seg AB. अगर AB seg MN seg के बराबर है तो इसका मतलब seg MN भी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, seg AB की. Got it? Now third property is transitivity. Now what is the means of this? इसका मतलब क्या है? Suppose there are three segments. If first segment is congruent to second and second segment is congruent to third one, so it means first segment will congruent to third one. अगर पहला segment दूसरे segment के बराबर है, दूसरा segment तीसरे segment के बराबर है, तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड सेगमेंट भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. देखो जो मैंने ऑलरेडी लिख के दिया गया है, इफ फर्स्ट सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू अ सेकंड एंड सेकंड सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड देन फर्स्ट सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड. तो इसका मतलब फर्स्ट जो सेगमेंट होगा वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, थर्ड वन का. आप यहाँ एग्जाम्पल भी देख सकते हो जो मैंने डायग्राम बनाया है. Suppose this is also of 5 centimeter. If segment AB is congruent to segment MN and segment MN is congruent to segment XY, so it means segment AB will also congruent to segment XY.
आप देख सकते हो, मैंने यहाँ लिख के दिया है, इफ sec AB is congruent to sec MN and sec MN is congruent to sec XY, it means sec AB will congruent sec XY. Okay, got it? Now your next topic is midpoint of segment. segment का midpoint आप यहाँ देख सकते हो, मैंने एक डायग्राम, एक सेगमेंट मैंने बनाया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, आई हैव ड्रॉन हियर अ सेगमेंट ए बी, ओके, बट पॉइंट एम इज सेड टू बी मिड पॉइंट ऑफ सेग ए बी। अब ये जो पॉइंट एम है, उस सेग ए बी का मिड पॉइंट हम कब कहेंगे? जब ए डैश एम डैश बी, मतलब तीनों कॉलिनियर पॉइंट है। और वन मोर कंडीशन, लेंथ ए बी शुड बी इक्वल टू लेंथ एम बी। ये दोनों का लेंथ क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं तब कि m क्या है? सेग ए बी का मिड पॉइंट है। अगर ये दोनों लेंथ अगर अलग अलग रहेंगे, सपोज इट इज 5 सेंटीमीटर आ रहा है और ये 4 सेंटीमीटर आ रहा है, तो क्या दोनों लेंथ बराबर होंगे? कभी नहीं होंगे। तब अब इस सिचुएशन में m इसका मिड पॉइंट नहीं होगा। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे इफ इट इज 2.5 और हियर ऑल्सो इट इज 2.5, लेंथ ए एम इज इक्वल टू 2.5, लेंथ एम बी इज इक्वल टू 2.5। तो अगर दोनों लेंथ इक्वल होंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल आएगा, तो हम कह सकते हैं कि लेंथ ए बी इज इक्वल टू लेंथ एम बी। ओके, और इस सिचुएशन में ये दोनों सेगमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हियर सेग ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग एम बी। एंड वन मोर थिंग आपको याद रखना है, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, किसी भी सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, अगर ये सेगमेंट के डिस्टेंस को अगर आप आगे पीछे करते हो, ये 2.5 और सपोज ये 3.5, तो क्या ये पॉइंट इन दोनों को इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट अलग अलग है। तो इससे एक बात प्रूव होता है कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हर एक सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। ओके, नाउ कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का कंपैरिजन, सपोज टू सेगमेंट्स आर गिवन हियर। फर्स्ट सेगमेंट line segment is AB, second line segment is CD, but as you can see here the measurement of both segments are different here, and we have to compare here which segment is greater and which segment is smaller, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप इसको इस तरह से कंपेयर कर सकते हो, as out of 5 and 7 which one is greater here? 7 is greater. It means length AB is greater than length AB is smaller than length CD. ओके, AB है वो लेंथ CD से क्या है? स्मॉलर है। क्यों? क्योंकि CD की जो वैल्यू है वो 7 है, AB की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो therefore sec AB will smaller than sec CD। यहाँ हमने कंपेयर कर दिया कि दोनों सेगमेंट में सेक CD क्या होगा? ग्रेटर होगा। किसके कंपेयर में? सेक AB है। ओके, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो? सेगमेंट को कंपेयर कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट द थियोरेटिकल पार्ट ऑफ योर बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर मेन एक्सरसाइज 1.2। इन दैट द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स on the number lines are as follow, then determine whether the segments are congruent or not। आपको एक पॉइंट और उसका कोऑर्डिनेट दे के रखा है यहाँ पे, और आपको बताना है कि जो दो यहाँ पे सेगमेंट दिए गए, जैसे फर्स्ट सेगमेंट दिया गया DE एंड सेकंड सेगमेंट दिया गया AB, ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। ओके, तो देखो हम इसको किस प्रकार से डिटरमाइन करके बताएंगे। Answer of first question. See, first we have to find out here sec DE and sec AB.
हमें डिटरमाइन करना है कि क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों के बीच का हम लोग लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ सेक डी ई। ओके, और इसका हम कभी भी जब दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि डी का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है -7, और ई का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है 9। ओके, तो इसमें से लार्जर कौन सा हुआ 9, तो लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। Here minus will become plus, so it will come 16 units. Okay, give it equation first. Similarly sec AB, तो चलो हम इसका भी लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ sec AB इज इक्वल टू, आप अब यहाँ पे देख सकते हो ए का कोऑर्डिनेट कितना है -3 एंड बी का कोऑर्डिनेट कितना है 5, तो विच वन इज ग्रेटर हियर 5, तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, so your greater coordinate is here 5 minus smaller coordinate is -3. Now this minus and this minus will become plus here, and 5 plus 3 this will come 8. If nothing is given, write here units. Now from इक्वेशन 1 and 2 आपको क्या मालूम पड़ा, क्या दोनों इक्वल है क्या नहीं है। तो यह लेंथ ऑफ सेगमेंट DE is not congruent to length of segment AB. So here you can write sec DE and sec AB are not congruent. Now your second question is here, sec BE and sec AD, ये भी हमें डिसाइड करना है कि ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो बिल्कुल हम पहले की तरह ही करेंगे अपना आंसर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ सेगमेंट BE। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, BE का कोऑर्डिनेट देखेंगे, पॉइंट B और पॉइंट E का कोऑर्डिनेट क्या है। B का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है 5, और E का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया 9। विच वन इज ग्रेटर हियर 9, so larger coordinate minus smaller coordinate, so we will write here larger coordinate minus smaller coordinate, and smaller coordinate is here 5, so this will come 4 units. Give it equation 1. Now your second segment is given here AD, so write here length of sec AD, and for that again we will see our table, and the coordinate of A is given -3 and the coordinate of D is given here. Now out of -3 and -7 which one is greater, -3 is greater. Mind well, in smaller number, in negative number, smaller number have always greater value. So -3 will greater than -7, so larger coordinate minus smaller coordinate, and this minus will become plus. Now minus plus minus, 7 minus 3 4, a sign of greater number, and greater number is here plus, so this will also come 4 units. So from equation first and second, what you got here, length of segment BE is equal to length of segment AD. So therefore segment BE and segment AD are congruent. So dear student,
आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में एक ही क्वेश्चन बचा है जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो ये थियोरेटिकल पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में जो मैंने लिखा है, सेकंड पार्ट में अप टू हियर इज योर क्लास वर्क एंड रिमेनिंग इस पार्ट में भी है योर होमवर्क। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और सम्स को सॉल्व कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच, बाय।